मिडल ईस्ट की जब भी बात आती है तो उसके हवाले से एक यही थ्योरी या फैक्ट, आप क्या कहें इसको, हम दहाइयों से सुन रहे हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड की और अमेरिका की मिडल ईस्ट तक जो पहुंच है वो तेल हासिल करने के लिए है। मैं हमेशा ये क्वेश्चन अरेज किया करता था कि अगर मिडल ईस्ट ने तेल नहीं बेचना तो क्या बेचना है? उनके पास बेचने को तेल के अलावा है ही क्या? लेकिन जो एक्सट्रीम लेफ्ट के लोग हैं या जो इस्लामिस्ट लोग हैं उनका यही कहना था, ओहो ये तो अमेरिका इराक जा रहा है, ईरान के पीछे है, ये तेल पे कब्ज़ा करना चाहता है। आज हम जिस दहाई पे खड़े हैं, अमेरिका को तेल की इनफैक्ट बाहर से ज़रूरत नहीं, कनाडा को तेल की ज़रूरत नहीं, लेकिन दुनिया की बड़ी बड़ी मंडियां हैं, चाइना है, इंडिया है, जापान है, यूरोपियन यूनियन है, उनको अभी भी तेल की मंडियों की जो है वो तलाश है। इस सारी सूरत हाल में हमारे साथ, मैं तो यही कहूँगा, तेल के एक बहुत बड़े सौदागर जो इस सारी बिपता को समझते हैं, जनाब अजय कुमार जी, जो CEO फॉक्स पेट्रोलियम हैं, हमें आज के कॉन्टेक्स्ट में बताएंगे, समझाएंगे कि तेल सोने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या आने वाले दिनों में ये जो गैस लेस कारें आ रही हैं, जो दुनिया बदलती जा रही है सोलर एनर्जी पर, उसका क्या इम्पैक्ट होगा दुनिया पर। चूँकि तेल दुनिया की सियासत पर फॉर द पास्ट 50 years एट लीस्ट ओवरवेलमिंगली रूल कर रहा है तेल। अब हम एक दहाई से देख रहे हैं कि डायनामिक्स चेंज हुए हैं। मैं वेलकम करता हूं ब्रेन बस में डॉक्टर रणवीर शारदा जी हमारे साथ हैं और इसके साथ साथ अजय कुमार जी, CEO फॉक्स पेट्रोलियम। इससे पहले कि मैं डॉक्टर शारदा जी को गुफ्तगू में लाऊं, अजय भाई, पहला सवाल मेरा वही है जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्या तेल तक पहुंच जो है वेस्टर्न वर्ल्ड की, यही टारगेट आज भी है जो पहले हुआ करता था? नहीं, अब नहीं है। अगर इसको बहुत सही से समझे, थोड़ा सा हिस्ट्री को पीछे की तरफ जाए, तो इन ऑर्डर टू क्लियरली अंडरस्टैंड द डायनामिक्स ऑफ ऑयल एंड गैस, it's really different. It doesn't impact, actually it is not a war for oil. It is something else, because all of us, we know that we could have used solar, we could have used another biogas and cell gas also. America developed cell gas in 1974. Then why he was using cell gas, 30 years or 40 years he delayed it? Because they knew the investment made in oil and gas in 1859 was higher than the investment cost today. So they were hiding it. America hid it very high. 1859 at Tutsville and Penn and Cole had been drilled first successful well through rock and produced crude oil. What's up called Rex Foley was the birth of modern petroleum industry, and he sold his black gold $20 a barrel. But 20 barrel at that time was very heavy. It was not easy. It was not, in current scenario, I find it $140 or $150 per barrel, because at that time the gold price was something else. And now current situation, if you will calculate, it should be $147. Now we are selling the oil in a cheapest way. America doesn't need, more Middle East oil, because America holds 42% of the oil and gas in their own land. But the investment made during 1859 to the current era of around 1992, the investment they made, so 80s till 80s. So already $400 billion Americans invested. So they cannot put it into vain, because this investment was not America, government of America. It was the private sector. Only the country where the private sector was playing very well in oil and gas. None other than, like India or any other country, Pakistan, Afghanistan or Asian countries. It was considered as a Schedule A business. Only government can do, not the private people can do. So American invested $400 billion at that era, has hindered them not to produce their own oil. Exploration was less. But coming to the Arab Spring, what you say, because it is a larger answer, I want to answer it very interestingly. The later time, the $400 billion investment at that time has killed America not to use shale gas, because it was cheaper than crude oil, it was easier to carry, and it was easier to produce.
and the latent heat of the shell gas was too good because you can use it in car also, you can use it in home also, and they have got the 100 years backup for this one. But because the investment they made, they cannot, introduce shell gas into the market. They delayed it. It was invented in 1974. So they went about oil and gas. Later on, they hydrocarbon. Say if I am right, as you said, Americans get into the Gulf, Suez Canal War. Then they came into a Desert Storm, the war known as Desert Storm with Israel. Then they came to Iran also, because Iran and America was one of the good friends once. They were selling oil and gas before the Islamic Revolution in Iran. So these all things came up because the investment made them. They made a bigger investment. But Arab Springs killed their investment, and suddenly they came into use the WMD to cut down their investments. It was the real thing, which is not into the papers, not into the news. WMD was just a joke to cut down their investments and private investor to get out from the this Middle East era. It was not an actual war. WMD was used as a tool to cut down their investments in Middle East. खुशी की बात है हमारे साथ खुशी की बात है हमारे साथ अजय कुमार जी सीईओ फॉक्स पेट्रोलियम के हैं। दुनिया में डिफरेंट जहाँ पर भी ऑर्गेनाइजेशंस इनको बुलाती हैं वहाँ पर स्पेशल इनसे लेक्चर देती हैं। अजय जी, एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा हिंदी का इस्तेमाल भी ज़्यादा करें ताकि हमारे जो दर्शक हैं वो हिंदी और इंग्लिश का मिक्स हो सके। मैं एक सवाल है अजय कुमार जी, जो है ना, इनको जब पार्लियामेंट में बजट पेश होता है तो बड़ी मज़े की बात यह है ताहिर साहब कि इनको ये पेट्रोलियम से बिलोंग करते हैं, इनको एज ए चीफ गेस्ट वहाँ बुलाया जाता है कि आप बजट के ऊपर अपना एनालिसिस जो है साथ साथ, आपको पता है बजट उधर चल रहा होता है, इधर एनालिसिस चल रहा होता है। तो ये मतलब लोकसभा के वहाँ टीवी पे बैठे होते हैं। जी ऑफ कोर्स, वो तो तेल इकोनॉमी का बहुत बड़ा पिलर है। इन्होंने ना बात की कि पहली बार टेनेसी में फर्स्ट टाइम जो ऑयल निकला, लोग समझते हैं टेक्सास में निकला, पहली बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी, वो टेनेसी में ऑयल निकला था जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं। वो $20 का मतलब ये है कि आज के टाइम पर वो कम से कम $20,000 पर बैरल आज के टाइम पर। अच्छा, फिर आपने एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया किया कि देखो जी, लोग कहते हैं कि अमेरिका जो है वो ऑयल के लिए जा रहा है इराक ईरान। आज जो सऊदी अरेबिया वाले पैसे कमा रहे हैं, कुवैत वाले पैसे कमा रहे हैं, यूएई वाले पैसे कमा रहे हैं, वो अगर वेस्टर्न वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट वहाँ पर ना जाती, हाँ जी, अगर वहाँ पर BP वाले ना जाते, शेल वाले ना जाते, अगर वहाँ पर ये एसओ वाले ना जाते, दूसरे ना जाते, तो उनका ऑयल जो था वो ज़ीरो था, क्योंकि दे डिड नॉट हैव द मनी एट दैट टाइम टू इन्वेस्ट। तो इन्वेस्टमेंट सारी की सारी यहाँ से गई, बल्कि उनको इनका शुक्रगुजार होना चाहिए जो एक्सट्रीमिस्ट हैं कि इनकी वजह से आज पैसा ही पैसा आ गया मिडिल ईस्ट में, इनकी वजह से। क्योंकि डॉक्टर साहब बात यह है ना कि मैं अगर कोई चीज़ सेल करता हूँ, मेरे पास अगर बायर ही ना हो तो मेरी तो प्रोडक्ट बेकार है ना। अब इनके पास तेल था मिडिल ईस्ट वालों के पास, नहीं प्राइमरीली इन्वेस्टमेंट नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, अब वो पैसा कमाया। अब देखिए उनकी स्मार्टनेस देखिए, वो अजय साहब पैसे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अब वो जो कहते हैं ना कि एक ही बास्केट में सारे अंडे नहीं रखने। अब अल जजीरा टीवी आ गया, उन्होंने देखा कि इससे हमारा नैरेटिव बिल्ट होगा। अब उनको ये पता चला कि ये जो फेसबुक के मालिक हैं, ट्विटर के मालिक हैं, ये हमसे भी बड़े रिच हैं, माइक्रोसॉफ्ट वाले। अब तो दुनिया के डायनामिक्स बदल गए। तो आपका एहसास होता है कि ईरान में, मिडिल ईस्ट में, अजय साहब, ये कोई अब वाकई ही एक नई अवेयरनेस हो इन्वेस्टमेंट के लिए कि ठीक है हम एनर्जी से पैसा कमा रहे हैं, लेकिन हमने यही पैसा अब आगे इन्वेस्ट करना है मीडिया में, सोशल मीडिया में, ताकि हम और आगे ग्रो करें। मैं इससे पहले कि अजय साहब आप जवाब दें, मैं ताहिर साहब आपने ये बात की कि वो पैसा जो है वो डाइवर्ट कर रहे हैं। हमने देखा कि $80 बिलियन सऊदी अरेबिया ने रिलायंस में लगाया। राइट, वो डाइवर्शन है, ऑफ कोर्स। हाँ जी, वो डाइवर्शन है। तो अब अजय जी, वो मैं उधर एक पॉइंट क्लियर करना चाहता था। आप चलिए, हिंदुस्तान में तो 80 बिलियन आ गया, हाँ जी, रिलायंस के पास, और कितना पैसा कहाँ से आ रहा है ये आप बताइए अब ताहिर साहब को, हमारे व्यूअर्स को बताइए।
ऑयल बिजनेसमैन जब पैसा कमाता है सर तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ऑयल बिजनेसमैन डाइवर्सिफाई बहुत करता है। गुड। ऑयल बिजनेसमैन अगर $100 इस साल अगर 10 बिलियन डॉलर कमाया, जैसे मैं इस साल $12.5 बिलियन लगाऊंगा वर्ल्ड वाइड, $12.5 बिलियन। इस मंदी के दौर में $12.5 बिलियन लिक्विड कैश सिर्फ ऑयल मैन ही कह सकता है कि मैं लगाऊंगा, नहीं तो और कोई इंडस्ट्री नहीं है। हाइड्रोकार्बन बिजनेस का एक गेम बहुत बड़ा है। वो जब कमाता है तो वो रियल एस्टेट वाले को देता है, वो कमाता है तो सरकार को भी देता है, वो कमाता है तो अदर चीजों में भी इन्वेस्ट करता है, वो कमाता है तो बैंक्स में लगाता है पैसे, वो कमाता है तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से लेकर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर हर स्टॉक एक्सचेंज को वो मैनिपुलेट करता है। वो उसमें कमाता नहीं है, उसमें मैनिपुलेट करता है, कुछ स्टॉक्स को गिराने के लिए, कुछ अपने खरीदने के लिए। तो ये गेम तो माइनस प्लस वाला तो मुझे बिजनेसमैन है तो करेगा, लेकिन जो आप कह रहे हो कि $80 बिलियन यहाँ आ गया, ऐसा है नहीं। होता क्या है कि सऊदी इन्वेस्टमेंट जो है गवर्नमेंट की इंटरेस्ट के ऊपर था कि किस में लगाएंगे, तो सऊदी ने वैल्यू किया कि चलो रिलायंस हमारे लिए बेस्ट पार्टनर होगा या और भी कोई बेस्ट पार्टनर होगा। वो गवर्नमेंट बताती है। यहाँ एक प्रॉब्लम इंडिया में क्या है, गवर्नमेंट डिक्लेयर्स कि ये कंपनी में लगाने हैं, गवर्नमेंट ये नहीं बताती कि किस मतलब कहाँ और भी लगा सकते हैं आप। गवर्नमेंट उन्हीं को इनवाइट करती है जिनके साथ गुड बुक्स होते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो। इंडिया गवर्नमेंट में पिछली गवर्नमेंट रही है तो भी उनके भी अपने लीग थे, इनके भी अपने लीग है, एंड वी आर आउट ऑफ द लीग। So we are the best people. We are working abroad in 23 countries. So we are not taking investment. We are giving the investments. So like me, I'm going to Afghanistan also. Nobody wants to go to Afghanistan. But Herald Oil and Gas Field has $3 trillion economy. If I go there, I'll go to curb the terrorism because we will put them into the job. We'll give them money not for only to produce the oil and give it to me and sell it to someone else. हम क्या करेंगे, उन्हें काम पे लगाएंगे। हम इंडिया से इंपोर्ट नहीं करेंगे लेबर, उनकी लेबर लोकल है, उन्हीं को ट्रेन कीजिए, उन्हें इस्तेमाल कीजिए। लाइक डरबन में हमारा प्लान है कि डरबन वाला और बड़ा करने वाले हैं। हमारा प्लान अल्जीरिया के लिए है, हमारा प्लान थोड़ा बहुत कनाडा के लिए है। हो सकता है टैग टीवी में पैसा लगाएं आने वाले दिनों में। टैग टीवी शुड बी, ये हमारा पोर्टफोलियो है, हम करते ही है। ऐसा नहीं है। मे इन्वेस्ट, हमारा बजट भी कम नहीं था, $42 मिलियन का था फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फर्स्ट ईयर में टैग टीवी के लिए। हमारा ऐसा प्री प्लान था। पैंडेमिक नहीं आता तो हो सकता था अभी तक तो डिस्कशन पॉइंट पे होते हम। तो ऐसे करके हर तेल वाले को हमेशा ब्लेम करना, लोग यहाँ तक कह जाते हैं तेल वालों की वजह से टेररिज्म आया है, तेल वालों को जितना कहना है सब कुछ कह लेते हैं, लेकिन तेल ने ही बहुत जगह इन्वेस्ट किया है। तेल इंडिया में आप सोचिए पर सेकेंड पैसा कौन दे सकता है, कोई इंडस्ट्री दे सकता। हर वक्त तेल कोई ना कोई किसी पेट्रोल पंप पे भर रहा है और हर वक्त वो भारत सरकार को पे कर रहा है एवरी सेकेंड। और एवरेज अगर मैं सही मुझे पर मंथ है या क्या है, 17,000 करोड़ रुपीज अर्न कर रही मंथली भारत सरकार, तो कम नहीं कर रही है। 17,000 मेरे ख्याल से मंथली नहीं, शायद पर डे है। मैं थोड़ा सा डेटा में चूक कर रहा हूँ, मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन 17,000 करोड़ तो है, मगर ईयरली नहीं है। 3 से 4 लाख करोड़ रुपए आप तेल से लाते हैं। इस पैंडेमिक में भी आपको सरकार चलाने के लिए तेल ही तो मिला था, पैंडेमिक में कुछ प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा था। हम ही जो तेल आया है उसी पे टैक्स लगाकर आपने इंक्रीज कर दिया उल्टा टैक्स और बेचा, जैसे भारत सरकार का है। मोदी सरकार ने कभी तेल की प्राइस गिराई नहीं। जब $147 का था, मनमोहन सिंह की सरकार थी, और उसके बावजूद भी उन्होंने 70-75 रुपए तेल बेचा। यहाँ 80 रुपए का भी है। इसके पीछे लोग सोचते हैं ना, ये गिराना नहीं चाहते, कम नहीं करना चाहते। सरकार की क्राइसिस ज्यादा बड़ी हो गई है, क्योंकि सरकार दूसरे टाइप की थी, उन्हें रन करना था, उन्हें आर्म्स खरीदना था, उन्हें कंट्री को चलाना था। तो उन्होंने पुराने डेब्ट्स भी भरने थे, जो PSUs थे, जो अदर कंपनीज थे, बैंक्स के लोन्स, बैंक्स के अपने कैपिटल्स नहीं थे, उन सबको किससे भरा? तेल से भरा उन्होंने, कहीं और से नहीं भरा। वो बोलेंगे नहीं, लेकिन यही सही है और यही सच है। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ब्रेन बस्ट में मैं आप सबको रिक्वेस्ट कर देना चाहता हूं कि ये आपकी डोनेशंस की वजह से हमारा प्रोग्राम चलता है। आप ज़रूर tagtv.info पर जाके आजकल किसी भी कार्ड से आप डोनेट कर सकते हैं। वाइल ड्यूरिंग चैट आप हमेशा paypal.me/tagtv इंटरनेशनल पर जाके भी डोनेट कर सकते हैं। बहुत मैं आपका धन्यवादी हूँ कि आप हमारे प्रोग्रामों को पसंद करते हैं और आप कंट्रीब्यूट भी करते हैं। लेकिन रिक्वेस्ट यही है कि जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, please contribute as much as you can. Tell your friends, tell your relatives to not only donate
बट एट द सेम टाइम सब्सक्राइब करिए यूट्यूब के ऊपर। जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे, इसकी ऑडियंस जब तक नहीं बढ़ेगी, तब तक इसकी इम्पोर्टेंस नहीं बढ़ेगी। आपने आगे इसकी इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ा दी है। अभी अजय जी ने कहा कि वो भी सोच रहे हैं कि टैग टीवी को कैसे हेल्प करें। तो इसी तरीके से मैं भी आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ ज़रूर अपना डोनेशन के साथ साथ अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों सबको बताइए, वो वॉच करें प्रोग्राम को और इसको सब्सक्राइब करें। जो सबसे बड़ा ताहिर साहब क्वेश्चन है जो मैं पूछना चाहता हूँ, जी जरूर पूछिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त अजय साहब ये ईरान की सिचुएशन जो है और चाइना की सिचुएशन, ईरान और चाइना की जो सिचुएशन है, ये एक मुझे लगता है दोस्त भी हैं और हो सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट भी हों। तो वो जो दोस्ती का चक्कर है जो वहाँ पर पाकिस्तान में इन्होंने बंदरगाह बना दी, ईरान जो है वो दुखी है, लेकिन ईरान का ऑयल जो है वो चाइना को बिक रहा है। तो ये आने वाले टाइम के ऊपर देखिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले डुबड़ीगढ़ में, असम में ऑयल का रेलवे लाइन बना रहे थे वो असम में, तो वहाँ पर ऑयल मिल गया। आज तक असम में सबसे पहली एशिया में जो बनी थी रिफाइनरी आज तक चल रही है। 1900 आप बता रहा 1902 या 1907 में ये था इशू हुआ। आप बताइए जी, आप बताइए ताहिर साहब, उसके बाद जी और जी असम में वेल नंबर 1 भी वहीं पर है। हाँ पहला कुआ वेल नंबर 1 भी डिगबोई में है और 1901 में डेवलप हुआ। लेकिन एक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए, वो मेरा सवाल ये है कि उसके बाद असम में कहते हैं जहाँ पर एक बार ऑयल मिल जाए वहाँ पर और भी ऑयल होता है, उसकी क्या वजह कि वहाँ पर और डेवलप नहीं हुआ? सर गवर्नमेंट एक्सप्लोरेशन, भारत सरकार में कोई एक्सप्लोरेशन पॉलिसी स्पेशल नहीं है और फॉरेन इन्वेस्टर्स शेड्यूल ए बिजनेस की वजह से पिछले उस टाइम में कुछ लोग ही कर पाए और फियर फैक्टर था कि पैसा लगाएंगे और पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन उस जमाने में बर्मा जो आज ब्रिटिश पेट्रोलियम है, एक्चुअली तो बर्मा पेट्रोलियम है जो भारत में एक्सप्लोरेशन करती रही है 1973 तक। बाद में वो ब्रिटिश पेट्रोलियम हुई है। 1971-72 तक भी बर्मा पेट्रोलियम जो है बीपी नहीं हुई थी, बाद में बीपी हुई है। तो ये जो वहां का, और भारत सरकार के पास 92 आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं सर, 92 तक अपने यहाँ लिबरलाइजेशन नहीं हुआ था, ना बाहर वालों का पैसा आ रहा था ना जा रहा था। लिबरलाइजेशन के लिए थैंक्स तो कहना ही चाहिए नरसिम्हा राव जी को, किसी भी पार्टी से थे लेकिन स्टार्ट तो उन्होंने किया था, सो वी मस्ट बी थैंकफुल टू हिम। पेट्रोलियम पॉलिसी आज भी क्लियर नहीं है। चाइना के पास अच्छी पेट्रोलियम पॉलिसी है, हमारे पास आज भी नहीं है। प्रधान हैज बीन द बेस्ट मैन इन मोदी गवर्नमेंट, इसलिए नहीं कि मैं ऑयल एंड गैस में हूं तो तारीफ कर रहा हूँ, बट उसने सिलेंडर दिया लेकिन पेट्रोलियम पॉलिसी ठीक वो भी नहीं कर पाए। 73 साल हो गए, आज भी नहीं है। करना क्या है ये पता नहीं है, इन्वेस्टमेंट किस बेस पे आएगा ये पता नहीं है, बट उनको पता है जिनको इन्वेस्टमेंट लाना है। तो या तो आपकी गवर्नमेंट लिंक अच्छी हो तब इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स होगी, इसीलिए असम पिछड़ गया सर। असम में बहुत ऑयल है, असम में ऑयल इतना है, अगर एक्सप्लोरेशन सही से करे। थोड़ा डिस्क्रीट लोकेशन है, टेररिज्म था, उल्फा ने तो पहले भी पाइपलाइन उड़ाया है। हम पहले भी, मैंने अभी आपसे बात हुई हो, किसी से बात हुई होगी तो मैंने कहा उल्फा ने पहले भी टेररिज्म का काम किया था, पाइपलाइंस उड़ा दिया था, रिफाइनरी में आग लगा दिया था एक जगह, और जैसे वर्ल्ड में होता है टेररिस्ट करते हैं। तो वो उन चीजों की वजह से भी शायद एक्सप्लोरेशन नहीं किया गया होगा उस टाइम में। फियर फैक्टर था, इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई, या इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी क्यों नहीं गई ये मुझे नहीं पता, मगर गवर्नमेंट की कंपनी, प्राइवेट इन्वेस्टर्स को भी चांस नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं है। जो वो कह रहे हैं वो उनकी वेबसाइट पे भी है, जब मुझे समझ नहीं आए तो किसी और को समझ आएगी। अब इस पे तो नहीं कह सकता कि मेरी समझदारी बहुत अच्छी है, बट मुझे लगता है मुझे समझ नहीं आया उनकी पेट्रोलियम पॉलिसी। भारत सरकार की पेट्रोलियम पॉलिसी समझ में आई, भारत सरकार का पेट्रोलियम एक्शन प्लान समझ में आया, सिलेंडर दिया घरों में, माँ बहनों के आंखों से आंसू पोंछा, ये तो बहुत समझ में आया। दिस वाज अ नोबल जॉब। बट अगर कोई कहे कि पेट्रोलियम पॉलिसी है भारत में, तो पाकिस्तान जैसा ही हाल है, कोई ऐसा खास नहीं। ईरान और चाइना का जो रिलेशनशिप है उसमें आने वाले टाइम के ऊपर उस पे आता हूँ, ईरान और चाइना वाले पे। आप ईरान और चाइना की रिलेशनशिप को, ईरान ने हमेशा इंडिया को बहुत अपर हैंड दिया था, लेकिन हमें या तो चूज करना पड़ेगा अमेरिका या ईरान। हमने इस बार हथियार के नाम पे ईरान चूज किया, लेकिन हम भी अपॉर्चुनिस्ट है, हमने पहले भी ईरान को चूज किया था।
जब हमें जैसे मौका मिला, ये डिप्लोमेसी का पार्ट है, लेकिन इंडियन बिजनेसमैन के लिए ईरान में बहुत रेस्पेक्ट है। हो सकता है अमेरिका में एक बार कम भी हो, लेकिन ईरानियन मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है कि अगर मुझे चूज करना पड़े ईरान और अमेरिका में बिजनेस के लिए, तेल का बिजनेस के लिए स्पेशली, तो मैं ईरान जाऊंगा, अमेरिका नहीं आना पसंद करूंगा। अगर तेल का बिजनेस हुआ, कैपिटल मार्केट होगा तो मैं अमेरिका जाऊंगा, क्योंकि पैसा कहां से लाऊंगा फिर ईरान में इन्वेस्ट करने के लिए। तो कैपिटल तो अमेरिका में है, तेल ईरान में है, तो अनफॉर्चुनेटली एक ना एक दिन इन तीनों की बाइंडिंग्स होनी बहुत जरूरी है, so that you can get the good oil, quality oil, not all the oil. All the oils are not good. सबकी अपनी अपनी सल्फर कंटेंट, सबकी अपनी अपनी मॉइस्चर कंटेंट है, सबकी अपनी अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी है। रिफाइनरी में लोड पड़ता है उससे, अगर आपको गलत क्रूड ऑयल दे दिया है तो भी आता है। लोगों को ये नहीं पता कि क्रूड ऑयल कोई भी नहीं ले सकते, ऐसा नहीं क्रूड ऑयल बोल दिया और उठा लिया, बहुत प्रॉब्लम। लेकिन ईरान के क्रूड ऑयल में हमेशा एक रहा है कि अपनी किसी भी रिफाइनरी में रिफाइन हो सकता है, तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। और रहा चाइना का ईरान के साथ झुकाव, तो चाइना को डिमांड बहुत बड़ी है, इतनी बड़ी डिमांड, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत हाई है और उसके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए गैस बहुत चाहिए, और वो पावरफुल भी मिडिल ईस्ट में होना चाहता है, तो उसने पैसे भी इसलिए दिए हैं क्योंकि, और ईरान की जरूरत चाइना को इसलिए है क्योंकि जो न्यूक्लियर ब्लास्ट टेक्नोलॉजी पाकिस्तान नहीं दे पाया, वो सिर्फ एक आदमी दे सकता था, चाइना। तो आपको तो पता है प्योंगयांग की कहानी। तो उसी तरह चाइना ईरान को के साथ अच्छा नहीं कर रहा है, इन्वेस्टमेंट के नाम पर न्यूक्लियर हथियार का काम करना। ईरान तो बहुत खूबसूरत कंट्री हो सकता है तेल बेच कर ही, जरूरत ही नहीं किसी न्यूक्लियर प्लांट की। उनके पास गैस में 39% वर्ल्ड का गैस है, तो उनको कभी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए किसी कीमत पे न्यूक्लियर आर्म्स की। वो इतने रिच हो सकते हैं कि आप उनके बराबर में तो नहीं रह सकते, सऊदी भी नहीं रह सकते उनके बराबर में। ये गलतफहमी है, सऊदी के बहुत ऊपर है वो, 17% एक्स्ट्रा गैस है उनके पास, और इजीएस्ट अबव लेवल क्रेस्ट पे उनका क्रूड ऑयल है। मतलब अगर सऊदी में हमें $9 लगेंगे एक बैरल तेल निकालने में, तो ईरान में सिर्फ $2 लगेंगे, अगर इसको कंपेयर सही से करें तो आप सोचिए ईरान बहुत कैपेबल था। लेकिन ईरान के यहाँ जो लोग हैं, या अब ये तो पॉलिटिक्स का पार्ट है जो हमारे लेवल का नहीं है। अब पॉलिटिकल पार्टीज को न्यूक्लियर आर्म्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसमें अगर मैं पढ़ूंगा तो मेरा सही नहीं है बोलना, बट उन चक्करों में ईरान का थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस है, वरना ईरान लगता है कि जी नहीं, अजय भाई जो बातचीत बता रहे हैं बड़ी इम्पोर्टेंट है, और हम जो समझ पाए हैं वो ये है कि वाकई उन्होंने सॉफ्ट वर्ड्स में कह दिया कि ईरान की जो इंटरनल पॉलिसी है, जो पॉलिटिक्स है, उसके बारे में उनका बोलना ठीक नहीं है। वो ना बोल के भी बोल गए वो ना भी कुछ बताना चाहें तो हमें अंदाजा है। हम न्यूक्लियर आर्म्स के जी, और उनको गैस मिलेगा, और न्यूक्लियर ब्लास्ट टेक्नोलॉजी, उनको न्यूक्लियर आर्म्स तो कादर खान ने दे दिया था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दे दिया था, लेकिन ब्लास्ट कंट्रोल्ड ब्लास्ट टेक्निक नहीं था। राइट। तो उसके चाइना ही दे सकता था उनको। वो तो आप इंडिया से मिल इजराइल की ईरान के साथ जो एक इंटेलिजेंस की जंग है, वो तो न्यूक्लियर पे ही है। और वो हमारे दोस्त तारिक फता अक्सर कहा करते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को खामखा ही ईरान का ज़्यादा खौफ है, उससे ज़्यादा खौफ तो पाकिस्तान का होना चाहिए। लेकिन खैर ये नहीं, पाकिस्तान के पास 100-150 एटम बम है, उसका ज़्यादा होना चाहिए। तो चलिए ये अपनी जगह पे है, लेकिन ईरान में बदकिस्मती से आप नहीं कह सकते, मैं कह सकता हूँ, मैं ईरान कई बार गया हूँ, अब नहीं जा रहा, तो वहाँ पे जो रजीम है वो ह्यूमन राइट्स का ख्याल करें। ईरानी जो लोग हैं मुस्लिम वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनकी रजीम जो है वो पता नहीं किस तरह सोचती है। हम ये हर तरह की रजीम से चाहते हैं, हम ईरानी रजीम से भी रिक्वेस्ट करते हैं सॉफ्ट वर्ड्स में कि जनाब आपका सर्वाइवल भी इसमें है कि आप दुनिया के साथ कंपैटिबल होकर चलें, ये आपके भी भले में है। खैर ये तो अपनी जगह पे मसला है। अब ये बताइए कि जो जहाँ से हमने बातचीत शुरू की थी कि जो तेल की सियासत ज़्यादा हो रही है, कारोबार तो तेल का जितना होना है वो होना ही है, चाइना को जितना तेल चाहिए वो तो लेना ही है उसको कहीं ना कहीं तरीके, चाहे वो रशिया से लें, चाहे ईरान से लें, चाहे अरब कंट्री से लें। लेकिन ये जो आगे वहाँ पे उस इलाके में स्ट्रेटजीज़, क्वाड की स्ट्रेटजीज़ बन रही है, चाइना का एग्रेसिवनेस चल रहा है, इसमें तेल भी बहरहाल अपना पार्ट प्ले करेगा। तो मतलब आप बताइए। इसको थोड़ा सा आप बढ़िया समझ सकते हैं, क्योंकि आप दोनों ही आदमी बहुत मजे हुए हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर।
तो मैं अगर कहूँ तो जियोपॉलिटिक्स 1904 में अगर वर्ड कॉइन हुआ है डिक्शनरी में तो गलती हो गई, रियल में आप दोनों के सामने कॉइन हुआ है। आप दोनों ही बहुत सही समझते जियोपॉलिटिक्स, बहुत बेहतर। ये जियोपॉलिटिकल गेम ऑफ ऑयल एंड गैस है जी। आप किसी को फ्रेंड बनाते हैं, तेल देते हैं। आप दुश्मनी करते हैं तो तेल का पैसा भी मांगते हैं और लोन का पैसा भी। ये तो आपको पता है, पाकिस्तान के लिए कह रहा हूं मैं। जब दुश्मनी करते हैं तो तेल भी, गैस भी बंद कर देते हैं और पैसा भी मांगते हैं। उसी तरह ईरान के साथ भी हुआ है। कभी अमेरिका उसका दोस्त रहा है, कभी ये आज चाइना उसका दोस्त रहा है। चाइना दोस्त होने के साथ साथ चाइना अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, जो जियोपॉलिटिक्स का पार्ट है। तेरा गैस लूंगा और तुम्हें पैसे दूंगा। ये जो टेक्निक है, बहुत गंदी टेक्निक है। बिजनेस को पॉलिटिक्स में मिक्स किया चाइना ने, और चाइना को पता था पैंडेमिक के बाद उसकी हालत बहुत खराब होने वाली है। तो ये सारी डीलें अगर 1.5 साल पहले की तो इसका मतलब चाइना ने वुहान वायरस क्रिएट किया है। सारी डील पहले की है, आज की कोई भी डील नहीं है। पीपल शुड अंडरस्टैंड कि तेल क्यों खरीदने गए थे वो। कभी चाइना नहीं आए, चाइनीज प्रीमियर, उनको जाने की ऐसी जरूरत क्या पड़ गई थी कि उस टाइम में वो गए, और गए भी नहीं। उन्होंने बहुत सारे कमिटमेंट किए हैं। $400 बिलियन का अपर फंड क्रिएट किया है और डिलीवर भी किया है, जिसमें से 190 तो उन्होंने डिलीवर किया है, और डिलीवरी भी नहीं की है। गैस के पैसे अभी तक गैस नहीं उठाया है, सिर्फ उसको अपने पास क्रेडिट लाइन में रखा है गैस को। तो इसका मतलब बहुत बुरा गेम था, क्योंकि उनको पता था पैंडेमिक के बाद उनकी हालत बहुत खराब होने वाली। सऊदी देने वाला नहीं था, क्योंकि अमेरिकन इन्फ्लुएंस इन सऊदी इज बिग, वेरी वेरी बिग। कतार वाज ट्राइंग टू गिव, बट कतर को शायद अमेरिकन वार्निंग थी और उन्होंने भी गैस के लिए हाँ नहीं भरा। तो उनके पास एक ही सोर्स था, रशिया और ईरान। रशिया को लिमिटेड सोर्सेज देना था। रशिया अपनी डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहा है चाइना को। रशिया जो भी कर रहा है सिंगापुर से दे रहा है। सिंगापुर का कोई भी बायर खरीद के किसको बेचता है, रशिया को मतलब नहीं। रशियन पॉलिसी ये कहती है। इसका मतलब आप रशिया में एक कंपनी फॉर्म कीजिए, गैस खरीदिए, ऑयल खरीदिए, और चाइना की रिक्वायरमेंट पर ईयर की बहुत ज्यादा है, भारत से 3 गुना ज्यादा है। उसे 10 कंट्री घूमना पड़ेगा। तो उसने सबसे बेस्ट पार्टनर चुना ईरान को। ये इनकी दोस्ती का नतीजा, क्योंकि इकोनॉमी बैठ जाती है। वैसे भी इकोनॉमी ऑडिटेड नहीं है हम चाइना की, तो इतना डरने की जरूरत नहीं है इंडिया को और अमेरिका को। अमेरिका विल बी सुपर पावर। कभी सेकंड थॉट तो मैं नहीं लेता, हो सकता है कभी कभार मैं गलत भी हो जाऊं, लेकिन चाइनीज इकोनॉमी इज अनऑडिटेड। तो पीपीपी बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन उन सबको चलाने के लिए उसे सिर्फ हाइड्रोकार्बन चाहिए। और हाइड्रोकार्बन बेस्ड इकोनॉमियों की सबसे बड़ी तड़प क्या है, अगर आप बायर है तो भी मर रहे हैं और सेलर है तभी मर रहे हैं। छोटा सा इस्लामिक रिवोल्यूशन हो गया तो भी आपकी शॉर्टेज हो जाएगी, क्योंकि आप याद कीजिए सूज कैनल वॉर वाले में इजिप्ट की ओनरशिप हो गई, सबने हंगामा किया, 7 साल भुगता लोगों ने। फर्स्ट ऑयल शॉक भी उधर लड़ाई होती है, पूरी वर्ल्ड भुगतती है। पैसा दूसरे का लगा हुआ है, इनका भी नहीं लगा हुआ है। मैंने फिर कहा, आपको पहले भी कहा था, $400 बिलियन उस जमाने में अमेरिका ने लगा दिया मिडिल ईस्ट वगैरह में। तो वो अपनी इकोनॉमी को सेव करने के लिए बहुत दिन वॉर करता रहा। तेल वाज नॉट, WMD वाज अ रीजन टू अवॉइड प्राइवेट इन्वेस्टर तब तक, लेकिन देर हो चुका था, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टर्स दूसरी जगह से भी घुस चुके थे। इटाली से घुस चुके थे, जर्मनी से घुस चुके थे। उससे ज्यादा बुरा तो क्या, ब्रिटेन के पैसे बहुत लग गए। तो बहुत लोग उसमें साथ नहीं देना चाहते थे। WMD वाज अ मिथ, WMD था ही नहीं इराक में, क्योंकि अगर ओपेक फॉर्मेशन हुआ तो बगदाद में हुआ 1960 में। ब्रेन बस्ट में आप सुन रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार जी को। डॉक्टर अजय कुमार जी जो हैं वो CEO हैं फॉक्स पेट्रोलियम के। और जैसे कि मैंने आपको पहले रिक्वेस्ट की कि आप हमें डोनेट करें, आप YouTube पर जाएं, जो कि आप YouTube पर प्रोग्राम देखते हैं, वहाँ पर आपको एक डोनेट का बटन मिलेगा। आप tagtv.info पर जाके, ये हमारा वेब पेज है, tagtv.info पर जाके आप डोनेट का वर्ड को जो है वो डोनेट करिए। किसी भी कार्ड से आप जो है वो पे कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप क्वेश्चन पुट करना चाहते हैं, हमारे जो आज चीफ गेस्ट हैं मिस्टर अजय कुमार, तो आप ताहिर साहब को वो क्वेश्चन जो है वो भेज सकते हैं, ताकि हम क्वेश्चन भी उनसे लेना शुरू करें। पेपाल वाइल लाइव प्रोग्राम जितने भी यहाँ पर होते हैं, मेरा ख्याल मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को जो लाइव प्रोग्राम होते हैं, उसमें आप पेपाल के थ्रू भी
पे कर सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखिए ये प्रोग्राम आपका है, ना तो ये ताहिर साहब का है, ना मेरा है, ना किसी और का। आपका प्रोग्राम है और आप ही इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, आप ही इस प्रोग्राम को ऊपर लेके जाएंगे, आप ही इस प्रोग्राम को नंबर 1 शिखर पर लेके जाएंगे, जो इस वक्त है भी, लेकिन और भी बढ़िया बनाएंगे। मैं चाहूँगा ताहिर साहब भी 1-2 मिनट कुछ इसके बारे में कहें कि आने वाले फ्यूचर में वो टैग टीवी के ऊपर क्या करना चाहते हैं, ताकि हमारे दर्शक जो हैं वो अप टू डेट रहें। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, अजय भाई बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हुए हैं। आपकी बात सुनना चाहता हूँ पहले। बहुत जल्द मैं कनाडा आने वाला हूँ। वेलकम। और बहुत टैग टीवी का अपना न्यूज़ चैनल होगा, टैग टीवी न्यूज़ चैनल ही हो जाएगा। और 100% इन्वेस्टमेंट मैं करूँगा, 100%। 100% मीन्स 100%। थैंक यू वेरी मच अजय भाई। आपने हमारा प्लान यही है और हम शुरू भी कर चुके हैं। हम प्लान पे बिलीव नहीं करते, हम एक्शन पे बिलीव करते हैं। हमने अब तक ये एक्शन किया कि 2 टैग टीवी के, मैं आपको भी बता रहा हूँ, अपने दर्शकों को भी बता रहा हूँ, 2 टैग टीवी के 24/7 न्यूज़ चैनल ऑलरेडी हैं। हमारी ऐप्स आप डाउनलोड कीजिए, टैग टीवी और टैग टीवी इंटरनेशनल के नाम से। अब हम एक इंग्लिश का इंक टीवी लॉन्च कर चुके हैं। ये नहीं है कि हमारा प्लान है, हम उसमें लॉन्च कर चुके हैं। मैं सिर्फ अभी इतना हिंट दूंगा, बहुत सारी बातें हम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहे होते। वो जो लॉन्च कर चुके हैं वो प्योर अल जज़ीरा का ही एक स्टाइल में, लेकिन हमारे अपने स्टाइल में होगा। हम उसको लॉन्च कर चुके हैं। 24/7 हमारा टारगेट है कि वो इस स्प्रिंग तक हो जाएगा। जो भी बहन भाई हमारे साथ मिलेंगे तो भी होगा, नहीं भी मिलेंगे तो भी होगा, क्योंकि हमने जब तय कर लिया तो उसको एक्शन में लाना है। चाहे काफ़िला जैसा भी बने, हमने उसको लेके चलना ही चलना है। तो व्यूअर्स, जैसे कि डॉक्टर शारदा बता रहे हैं कि आप हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए। दुनिया का बड़े से बड़ा मीडिया, CNN हो, अल जज़ीरा हो, बड़े से बड़ा मीडिया जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेशनों के बड़े बड़े डोनेशन पे चलता है, हम सिर्फ आपकी डोनेशन पे चलना चाहते हैं। अभी आप हमें अपना दे रहे हैं साथ, आपका साथ और बढ़ेगा। डॉक्टर अजय कुमार जी जिस तरह कह रहे हैं, हम मिल के चलेंगे, डेफिनेटली मिल के चलेंगे। आने वाला समय हमें किस तरफ लेके जाएगा ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। सवाल लेना शुरू करते हैं व्यूअर से। डॉक्टर अजय एक बहुत ही बिजी पर्सनैलिटी हैं, बहुत कम वक्त दे पाती हैं, इनकी बहुत गहरी नज़र है। अगर हमारे सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हम चाहेंगे कि वो क्वेश्चंस डॉक्टर अजय के साथ भी शेयर करें और मैं और शारदा जी भी उस पर लें, इससे पहले के सवालात सामने आए। अजय भाई एक बात आप बताइए, मेरा सवाल एक और है कि इस वक्त जो कोविड की सिचुएशन है, जब कोविड शुरू हुआ मार्च अप्रैल में, तो दुनिया भर में गैस की प्राइसेस जो थी ना वो बिल्कुल नीचे चली गई, बुरी तरह नीचे गई। प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस वक्त कहा कि ये बहुत ही अहम वक्त है हमारे लिए परचेज करने का। जैसे स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिरती है तो दुनिया के जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो खरीद लेते हैं, जो समझदार इन्वेस्टर्स हैं। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना था कि हमारे पास जगह नहीं है ऑयल को अब मज़ीद स्टॉक करने की। तो प्रेसिडेंट ट्रंप का वो जो ट्वीट था वो रियलिटी थी, या प्रेसिडेंट ट्रंप के जो ट्वीट अक्सर होते हैं हम शक में रहते हैं कि वो क्या है? नहीं, प्रेसिडेंट ट्रंप कोई भी प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऐसे नहीं बोल सकता। राइट। प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत सही कहा, नेचुरल गैस किसी डब्बे में लोड नहीं हो सकता, उसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए। -162 डिग्री सेल्सियस पे वो ट्रेवल करता है, तो इतना इजी नहीं है। वो सही कह रहे थे, इतने क्रायोजेनिक टैंकर्स नहीं होंगे उनके पास नेचुरल गैस स्टोर कर ले। तो बिल्कुल सही था। क्रूड ऑयल के लिए भी एक बीमारी ये है कि आप कितना स्टोर कर सकते हैं, बंकरिंग इतनी है नहीं। जैसे आप तो चलो प्रेसिडेंट ट्रंप की बात मैं उनको बहुत सही तरीके से जानता हूँ। बिना एक गोली चलाए $3.18 ट्रिलियन का चाइना को हिट दिया है, ऐसा भी प्रेसिडेंट हुआ है। और जॉर्ज बुश जो थे उन्होंने वॉर किया $10.5 बिलियन का, और इतनी गोलियां चली, मिला कुछ नहीं। तो एक बिना बुलेट चलाए $3.18 ट्रिलियन का थ्रस्ट दिया चाइना को। ये थोड़ा कैलकुलेट करते सर, मिल जाएगा आपको स्टोरी। उन्होंने बहुत अच्छा भी काम किया है, कोई प्रेसिडेंट बुरा नहीं है अपनी कंट्री के लिए, तो हमेशा ही हर प्रेसिडेंट अच्छा है। लेकिन ऑयल इकोनॉमिक्स उन्होंने बहुत सही कहा था कि स्टोरेज के लिए जो गैस का नेचुरल गैस का स्टोरेज है तो ईजी नहीं है, वो किसी डब्बे में सिलेंडर में स्टोर होने वाला नहीं है। उसके लिए क्रायोजेनिक टैंकर चाहिए, क्रायोजेनिक इन्वायरमेंट चाहिए।
लोडिंग एंड अनलोडिंग भी बहुत इनोवेटिव टेक्नोलॉजी चाहिए। ये इस टेक्नोलॉजी पे नहीं होती, एलपीजी नहीं है कि आप सिलेंडर में लाए और रख लिया। तो वो बहुत सही थे उस मामले में। अजय जी, लेकिन इसी में एक सप्लीमेंट क्वेश्चन है, इनका सप्लीमेंट इन्हीं के साथ जी। कि उसी वक्त ट्रंप ने ट्वीट किया था और कहा था कि ऑयल की कीमतें बढ़ाओ, ऑयल इस कीमत पर नहीं बेचना, ऑयल की कीमतें बढ़ाओ, और उन्होंने ओपेक के ऊपर प्रेशर डाला कि आप सप्लाई कम करिए ताकि ऑयल की कीमत बढ़े। इसके पीछे क्या रीज़न था? सर, ओपेक प्लस को हमेशा एक प्रॉब्लम रही है, अगर वो प्रोडक्शन हाई करता है तो सप्लाई साइड बढ़ जाती है, और बायर तो वही गिने चुने हैं। देखिए, वर्ल्ड में जितनी कंट्री हो तो सब रजिस्टर्ड है, उनमें से सिर्फ 92 कंट्रीज ही खरीदती है, उसमें से 14 कंट्रीज रियल बायर है, 14 ओनली, जो बल्क बाइंग कर सकते हैं, जिनकी इकोनॉमी उतना थ्रस्ट ले सकती है। तो वो उन्होंने प्रोडक्शन को अगर कट करने के लिए कहा तो बहुत सही कहा, क्योंकि प्रोडक्शन कट होगा तो ऑयल प्राइसेस अबव आएंगे, अदरवाइज सिंकिंग ऑयल प्राइसेस में कट डाउन अदर इन्वेस्टमेंट्स आल्सो। वो बहुत सही थे, वरना बैंक्स के डूबने के चांसेस ज्यादा फास्ट होने वाले थे। ही न्यू द इकोनॉमी, क्योंकि जैसे हमारे पास भी बैंक्स हैं, हमने भी किसी बैंक के साथ टाई अप कर रखा है। सारे ऑयल मैन्स को $1 बिलियन का बीजी चाहिए होता है, $1 बिलियन का सब कुछ चाहिए होता है। वो 100 करोड़ का तो काम नहीं करते ना, तो उनको उस लेवल का बैंकर्स डूबने वाले थे, उन्होंने उसको बचाने की कोशिश किया। He was a true businessman. He knew what is the bank guarantee system, what is a BR system, what is a CR system. उनको ये पता था कि अगर ये नहीं रोका, ओपेक को नहीं दबाया, तो ये उन जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, वो उस टाइम में अमेरिका में क्राइसिस आती है अमेरिकन बैंक के लिए, रिसेशन जिसकी वजह से आया, दोबारा उनको बहुत जल्दी मिलता रिसेशन। उन्होंने तो रिसेशन को भी टाल दिया ओपेक पर प्रेशर डालकर। ओपेक में रशिया का रोल इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा था। रशिया कहता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दीजिए। अब आप थोड़ा सा मेरे को 1 मिनट का टाइम देंगे, मैं बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। अमेरिका को जब ऑयल नहीं जरूरत पड़ी तो उसने सबको अपनी हकीकत बताना शुरू किया। जब उसने डिक्लेयर कर दिया कि वो ऑयल खुद ही प्रोड्यूस कर सकता है, तो उसने अपनी इन्वेस्टमेंट खींचनी शुरू की। उसके बाद उसने पूरे इराक वॉर के बाद सब कुछ मिडिल ईस्ट के ऊपर छोड़ दिया। ये मिडिल ईस्ट को कौन समझाएगा कि अमेरिका को अब आपकी ऑयल की जरूरत नहीं है? वो इन्वेस्टमेंट जो थे उनके लिए अब जीरो है, क्योंकि वो इससे बहुत ज्यादा अर्न कर चुके हैं, क्योंकि $100 को वो 15 बार काउंट कर चुके हैं, और कुछ $100 जो है वो 1003 बार काउंट कर चुके हैं। तो आपके ना तेल की जरूरत है और ना आपके यहाँ पैसा डूबने की उनको दिक्कत है। अब वो आपके साथ दूसरा गेम खेलेंगे, अब उनको जरूरत नहीं। ये बात उनको समझ ही नहीं आ रही है कहीं से भी। उनको कोई तो समझाए कि अब आपके तेल की जरूरत नहीं है, आपको मार्केट ढूंढने पड़ेंगे। ढूंढना पड़ने लग गया उनके पास। अदर टेक्नोलॉजी, टेस्ला ने गाड़ी लॉन्च कर दी, इलेक्ट्रॉनिक कार्स हो गए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान दिया, सोलर एनर्जी पे ध्यान देना शुरू किया। कहीं ना कहीं जी बहुत अहम बातें अजय भाई बता रहे हैं। जी जी। और काफी am I audible? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बीच में कहीं कहीं ग्लिच आती है 1-2 सेकंड की, तो आपकी आवाज़ पहुंच रही है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ उसमें इजाफा करना चाहूँगा। पर्सनली ऑन मैनी नोट्स, नॉट ऑल बट ऑन मैनी नोट्स, आई एम अ फैन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रंप। ये मैं खुलेआम कहता हूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह बहुत सारी मैं चूँकि बहुत सारे थिंक टैंक्स के साथ वाबस्ता हूँ, मेरा अपना भी एक छोटा सा थिंक टैंक है, हम बहुत अंदर जाके डिटेल में जाके चीज़ें देखते हैं। जो हमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात लगी ड्यूरिंग द पास्ट 4 years कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए बगैर उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को टोन डाउन किया। ये चीज़ें लोगों को समझ नहीं आ रही। हमें ये पता है, मतलब इवन अमेरिका के सेंसिटिव इदारों से भी हमारे थिंक टैंक्स की कम्युनिकेशन होती है, दे अंडरस्टैंड इट, ठीक है। लेकिन वो पॉलिटिकली इतना बड़ा वहाँ पे प्रेशर होता है अमेरिका में, वो पॉलिटिकल गेम की वजह से सदर ट्रंप को एक बुरे शख्स के तौर पर पेंट किया जाता है। दैट्स फाइन, नाउ ही लॉस्ट द इलेक्शन, वट एवर द रीज़न, थिंग्स मूव ऑन। अब ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन आएगी, इससे पहले कि हम क्वेश्चन लेना शुरू करें, आप अमेरिका की नई एडमिनिस्ट्रेशन के ज़माने में ऑयल से रिलेटेड पॉलिसियाँ क्या देखते हैं? इट्स अ बिग क्वेश्चन, आपने सही पूछा। डॉक्टर सादा सर एग्री नहीं करेंगे क्योंकि आप ट्रंप को लाइक करते हैं। सादा सर एग्री यंग मैन है। वो ट्रंप ने बहुत लोगों को बिना बुलेट चलाए एक गोली नहीं चलाई, हर जगह हिट किया है।
सादा सर को एंग्री यंग मैन की तरफ फाइटिंग पसंद है, लेकिन हमें लगता है कि ट्रम्प वाज अ गुड मैन इन सम केसेस, लाइक वॉर उनका चॉइस अल्टरनेट चॉइस रहा है, मेन चॉइस नहीं रहा है। तो मैं बहुत पसंद करता हूँ उनको, मैं भी। लेकिन जो बाइडेन बहुत मजे हुए पॉलिटिशियन है, बहुत मजे हुए। उनको पता है कि कब क्या कहना है, क्योंकि उनके सामने भी चुनौती कम नहीं है। गैस मार्केट है, ऑयल मार्केट है, एलएसी है इंडिया का, तिब्बत है, और सबसे बड़ा क्या है कि उनको चाइना सप्लाई रोकना है। जैसे ही चाइना सप्लाई रोकेंगे हमें बेनिफिट होगा, और चाइना सप्लाई रोकेंगे बहुत डिफरेंट तरीके से। वो वॉर करते हैं, वो डिप्लोमेसी लेते हैं, वो कतर को प्रेशर देते हैं, ईरान को सैंक्शंस लगाते हैं, रशिया पे सैंक्शन लगाते हैं। करना तो उनको पड़ेगा ही, क्योंकि एवरी डॉलर गोइंग टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया इज लाइक फीडिंग टेररिज्म। सेम इज विद जो बाइडेन सर, अगर वो भी किसी को मदद करने देते हैं ईरान को, उनके लिए, मेरे लिए नहीं, मैं तो ईरान का फैन हूँ। So I'm not worried about America or anything. I've got a good visa and all. Every time I get good respect. But ईरान को थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि ईरान में कोई ना कोई समझदार आदमी तो होगा जो समझेगा उसके पास इतना तेल है, जरूरत ही नहीं है वॉर करने की और न्यूक्लियर आर्म्स की। उसके हर आदमी के पास 13 करोड़ डॉलर हो सकते हैं 20-30 तक, अगर वो आज भी सही पॉलिसीज लेगा। 13 करोड़ डॉलर, every family they'll get 13 crore dollars। 13 करोड़ डॉलर बहुत होते हैं, बहुत। वहाँ फैमिली नहीं, मैं भी बहुत जा चुका हूँ, एक बार नहीं बहुत बार। और उनमें से किसी ने मेरे को एयरपोर्ट में अमिताभ बच्चन भी कहा था, तो मुझे याद है पहली बार का आई नो अमिताभ बच्चन। तो वो लोग हैं। हमें लगता है कि जो बाइडेन ईरान के साथ तो नरम रहेंगे, लेकिन चाइना के साथ नरम रहेंगे, और आने वाले दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। लेकिन इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, इंडिया के लिए बहुत बुरे अच्छे दिन आने वाले। इंडिया अगर चाइना के साथ किसी तरह का टसल थोड़ा और बढ़ता है, वॉर होने के बाद भी एलएसी पे, हमें पता है एलएसी पे क्या होगा। हम बोल ही नहीं सकते एलएसी के बारे में, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट एलएसी एंड एलओसी। बट अगर वॉर हुआ तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छी इंडिया की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, जीडीपी। वॉर से जीडीपी बढ़ती है, किसी और दिन आप मेरे को बोलना, मैं जरूर बताऊंगा। वॉर जब भी कोई करता है तो जीडीपी बढ़ाता है। अपनी जीडीपी की ग्रोथ जब बहुत इनग्रेडिएंट हो जाती है तब वो वॉर करता है। ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूँ, जब भी किसी की जीडीपी अपने हाथ से फिसल चुकी होती है और जब इकोनॉमिस्ट रिकवर करने के आइडिया नहीं दे पाते, तो उसके पास एक ही रास्ता होता है, वॉर करना। वो पेट्रोटिज्म में वॉर नहीं करता, नेशनलिज्म में वॉर नहीं करता। जब जीडीपी हाथ से फिसलने लगती है तो वो वॉर करता है। हाइड्रोकार्बन से कम प्रॉफिट होता है तो वॉर करता है। हाइड्रोकार्बन इज रियल इकोनॉमी। किसी को आईटी समझ में आता है, लेकिन हाइड्रोकार्बन के बिना ना बटन बनने वाला है ना आपकी पैंट की जिप। तो हम इज्जत भी संभालते हैं और घर भी। आपके दरवाजे पे पेंट जो लगा है खूबसूरत सा, वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो इतना इजी नहीं है हाइड्रोकार्बन को भूलना। और सोलर पैनल कितना भी लगा लीजिए, अच्छी टेक्निक है, हाइड्रोकार्बन पे बर्डन कम पड़ेगा। मगर सोलर पैनल का कचरा जब एक दिन आएगा, उसका वेस्ट आएगा, तो आप संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत टाइम है। हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम इज नॉट फॉर सर्विस, इट्स लाइट फॉर लाइफ। सो ये लाइन अगर समझ में आएगी तो बहुत कुछ समझ में आएगा। और मुझे लगता है सऊदी को भी समझना चाहिए, मुझे लगता है ईरान को समझना चाहिए। ईरान को तो बेनिफिट ये है कि दोस्ती करना चाहिए। वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज ईरानियन शुड गेट इनटू द फ्रेंडशिप। और मैं तो उनका फैन, इसलिए मैं तो फ्रेंड हूँ। नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वेयर यू कम फ्रॉम, और आप बहुत डीप चीज़ों को समझते हैं। हम क्वेश्चंस भी कुछ लेना चाहते हैं, अगर कुछ क्वेश्चंस आए हैं तो ज़रूर शेयर कीजिए। ह्यूमन बीइंग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर अजय कुमार जी। Are major oil and gas petroleum corporations also going to diversity into wind, solar, battery technologies, fuel cells, biogas, etc.? तो जी अजय भाई, आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे लेते हैं? इस क्वेश्चन के साथ तो भारत सरकार की पॉलिसी ही इनेबल्ड है। लाइक भारत पेट्रोलियम सब कंपनियों को इंडिया में ऑर्डर्स है एक्चुअली कुछ इन्वेस्टमेंट बायोगैसेस में करने के लिए। मैंने ओरियाना पावर को सुना है, ओरियाना पावर में मेरी प्लानिंग भी इन्वेस्टमेंट की है। हो सकता है ओरियाना पावर के बायोफ्यूल में हम 80 करोड़ रुपए इंडियन, आई थिंक $10 मिलियन लगाएंगे।
ओरियन पावर से हमारी बात चल रही है, अभी इन्वेस्टमेंट्स हुए नहीं है, उनकी प्रपोजल्स आए हैं, वी आर हैविंग अ मीटिंग्स। तो सभी कंपनी के, भारत पेट्रोलियम भी कर रही है, बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं, और ये होना भी चाहिए। बर्डन ऑन हाइड्रोकार्बन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कार्बन इमिशन होता है, तो कार्बन को कम करने का एक ही रास्ता था, पेड़ का, और हम पेड़ बहुत काट रहे हैं। पेड़ लगाना अगर सीख जाए तो हाइड्रोकार्बन को यूज़ कर सकते हैं फ्रीली, कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, लेकिन हम पेड़ नहीं लगाते, सिर्फ काटते हैं। रियल एस्टेट डेवलपर्स नई कॉलोनीज बसा रहे हैं, लेकिन नए पेड़ तो नहीं लगा रहे, तो वो चैप्टर भी बहुत गंदा है। हमारे ख्याल से अब तो ऑयल एंड गैस कंपनीज को आना चाहिए कि जितने भी हाईवे हैं सबके अगल बगल 500 मीटर तक पेड़ लगा दें, और इतनी इनकी कैपेसिटी है, और मुझे दे दे भारत सरकार तो मैं सब पे लगा दूँ, और मैं लगा भी दूंगा, और हाइड्रोकार्बन फ्री, बहुत आराम से। बहुत अच्छी बात। बायोगैस पे आपने बहुत सही कहा, उसने जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, बायोगैस पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है, और ज़रूरी है क्योंकि इजीली अवेलेबल भी है, रिच अच्छी है, उसकी स्टोरेज की प्रॉब्लम नहीं है, नेचुरल गैस की स्टोरेज की। हम जब LNG गैस टैंकर्स बनाने शुरू करेंगे तब तो हम पेट्रोल LNG गैस स्टेशन बनाने शुरू करेंगे। अभी आया नहीं कि हम नेचुरल गैस पे गाड़ियाँ चलाएं, CNG पे तो चल नहीं रही है, तो उस पर कहाँ चलाएंगे। लेकिन जो जिसने पूछा है, आई सपोर्ट, और किसी के पास प्रपोजल होगा तो AK@foxfilm पे भेजो, हम देखेंगे, शायद हम भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके यहाँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चंस जो हमारे पास आ रहे हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। लोकेश जी का क्वेश्चन है कि व्हाट फ्यूचर रिलेशन यू सी बिटवीन इंडिया एंड ईरान। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है अजय भाई। अब इसके ऊपर तो मैं ये कहूँगा कि कभी अमेरिका भी ईरान का दोस्त बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। आई थिंक इससे बेहतर रिलेशनशिप नहीं हो सकता कि ईरान ने 1976 तक, अमेरिका ने 1976 या 1995 तक उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को रिलेट किया। इसका मतलब अमेरिका वाज कन्विंस्ड। तो इतने अच्छे रिलेशन। लेकिन इंडिया के साथ क्या है कि इंडिया में पॉलिसी चेंज ऐसे होते हैं, आज गवर्नमेंट बदल गई, कल ईरान दोस्त हो गया, कल गवर्नमेंट बदल गई, अमेरिका के साथ हम लग गए तो हमारा ईरान दुश्मन हो गया। हमें अपने प्रॉफिट्स के साथ अपना प्रॉफिट चुनना चाहिए। और मैं तेल वाला हूँ, मेरा प्रॉफिट है, और ये ताहिर सर को पसंद नहीं आएगा। नहीं, मुझे बहुत पसंद आ रही है बात। ये प्रोफेशनल बात है, ये अजय साहब प्रोफेशनल बात है कि जो काम आप करते हैं, पैसे कमाऊंगा तो सब जगह लगाऊंगा। तो आप ईरान और इंडिया की बात जब करेंगे तो कभी कभार प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के बीच में रिफ्लेशन क्या होता है, भारी कहाँ पड़ता है। जब हम सेंटीमेंट्स की बात करते हैं, इंडिया को ईरान के सेंटीमेंट्स की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, डिस्पाइट बीइंग थ्रेटन्ड बाय एनी ऑफ एनीवन। आई एम नॉट अगेंस्ट एंटी अमेरिकन और एंटी स्लोवेनियन। मैं अमेरिका रहता भी हूँ, पसंद भी करता हूँ, घर भी है, दुनिया भी है, लेकिन कैपिटल भी वहीं से मिलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ईरान को की सेंटीमेंट को आप हिंडर करें। अजय जी मैं बीच में बोलना चाहता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ईरान की जब तक प्रेजेंट एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, जिस तरीके से उनकी थिंकिंग है, जिस तरीके से वो अपनी सोच को इम्पोज करना चाहते हैं, तब तक उसके साथ कोई किसी किस्म के रिलेशंस नहीं होने चाहिए। उनकी सोच को चेंज करवाना चाहिए। आज के ज़माने में सोच तभी चेंज होती हैं जब उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर पड़ते हैं, जब उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर पड़ते हैं। आज ईरान के ऊपर बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रेशर्स पड़े हुए हैं, उसके बावजूद भी वो हमेशा लड़ाई की बात करते हैं, वो हमेशा अमेरिका को तबाह करने की बात करते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि इजराइल को हम दुनिया के मैप से ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ईरान एट वन टाइम, लोग आप मानिए, मेरे बहुत पंजाबी दोस्त थे जिनका वहाँ पर बड़ा बिजनेस था ताहिर साहब जी, हाँ जी, एंड दे वर सो हैप्पी। और ख़ास करके वो वहाँ का जो बताया करते थे कि लोग जितनी उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन इस वक्त जो ईरान की पॉलिटिकल सिचुएशन है वो इतनी ख़तरनाक है कि उस खतरे को कंट्रोल करना सबसे पहला काम होना चाहिए, ना कि ईरान के साथ आगे दोस्ती का। ये मेरा विचार है, हो सकता है अजय साहब इससे ना एग्री करें, लेकिन उनकी सोच बदलनी बड़ी ज़रूरी है। जी अजय साहब, ये इंपॉर्टेंट बात है, आप कैसे देखते हैं इसको? सर जो इस्लामिक रिवॉल्यूशन ईरान में आया वो 1979 में आया, बिल्कुल ठीक, लेकिन आप लोग उसमें से मिस कर गए एक चीज। हाँ। अमेरिका ने उसको, उस गवर्नमेंट को टपल किया था, और टपल अगर हिस्ट्री अगर सही है, फॉल्ट लाइन सही है, फॉल्ट लाइन आपके साथ ठीक कह रहे हैं,
एजेंसीज वाले यूज करते हैं फॉल्ट लाइन। फॉल्ट लाइन अगर सही है तो मैं तो किताब ही पढ़ता हूँ, मुझे तो पता नहीं क्या होता है एजेंसीज और क्या है, बट एजेंसीज का एक चीज है ट्रूथफुल, ट्रू डायरी तो ट्रू डायरी है। अमेरिका ने अपने बेनिफिट के लिए वहाँ सरकार गिराने की कोशिश की। अगर मैं कहूँ कि रिवोल्यूशन वहाँ साफ ईरान को वहाँ से डिपोज किया, तो ये भी अमेरिकन पॉलिसी की बड़ा इन्वेस्टमेंट करेंगे। वो फेल रहा, CIA मेनी टाइम्स दे फेल्ड। वो उनकी फेलियर का आप इतना बदला लोगे इतने लंबे टाइम तक ईरानियन के साथ, ये गंदा है, ये गंदा है, दिस इज बैड। ईरान को भी समझना चाहिए न्यूक्लियर पावर से कुछ मिलना नहीं है ना। भारत के पाकिस्तान के पास इतना बड़ा न्यूक्लियर पावर है, भारत पे कभी अटैक किया? हिम्मत भी कर सकता है इस जिंदगी में तो नहीं। और उनके न्यूक्लियर एसेट्स के ऊपर भारत की हर चीज पे निगाहें हैं। मुझे जितना अगर मैं किताबें पढ़ता हूँ, नॉलेज रखता हूँ, तो मुझे पता है कि भारत सरकार हार्डली they'll take 8.138 minutes to counter nuclear power of Pakistan. So अमेरिका तो बहुत बड़ी चीज है, अमेरिका को भी थोड़ी ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटी दिखानी चाहिए। They should have visited ईरान। वहां पर इतने बुरे लोग नहीं है जितना आप कह रहे हो, या मतलब हम पैनल में दुनिया में जानते हैं। ईरान में इतने बुरे लोग नहीं है, सऊदी में इतने बुरे लोग नहीं है, सऊदी भी इतने अगेंस्ट में ईरान में नहीं है। हमने क्रिएट कर दिया है तो चल रहा है भाई, अब चल रहा है, और ये सब बिजनेस है, और प्रॉफिट इज माय प्रॉफिट। तो फिर ये लाइन सही है कि ईरान के साथ जो हो रहा है, लेकिन ईरान को संभलना हो। ईरान के पास चॉइसेस नहीं है, पीपल अच्छी ईज ऑफ लिविंग चाहिए। मोदी जी जो कहते हैं ईज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी चाहिए, तो मोदी जी के साथ मिल जाएगी। ताहिर साहब आपको एक सवाल, अजय जी, ताहिर साहब को सवाल पॉलिटिकल जी। इन्होंने कहा कि उसको इस वक्त ईरान को जो है जी वो संभलना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अमेरिका अगर एक तरफ से हट गया जी ईरान से, पिछले कई सालों से हटा हुआ, आज नहीं हटा हुआ, जब से इजराइल के बारे में बातचीत हुई है, अब चाइना बीच में आ गया। बताइए पॉलिटिकल सिचुएशन में है जी, वो कितना इम्पोर्टेंट है? देखिए दोनों बातें जो डॉक्टर साहब ने की, जो आपने की, मैं दोनों को किया है। मैं तो इतनी कहानी क्यों बताऊं? नेपाल में आप, इंडिया में पॉलिटिकल वैक्यूम है तो अपोजिशन है ही नहीं, आप इतनी दूर क्यों जाते हो? अपनी इंडिया के देख लो, पॉलिटिकल वैक्यूम है। राइट। नोबडी कैन स्टॉप मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी। देयर इज नो अपोजिशन, ही डिफीटेड अपोजिशन वेरी लास्ट। तो अपोजिशन खत्म करने के बाद जनता के हाथ में चाबी होती सर, और आप जैसे जर्नलिस्ट के हाथ में। जो आप बोलते हो हमारे पास वही सहारा है। तो ईरान में भी वैसा ही है। चाइना जैसे अमेरिका ने साथ छोड़ा ना, उसके पीछे वजह ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट तो डूब गई, वहां कोई फ्रेंडली माहौल नहीं है, इन्वेस्टमेंट डूब गई। अब चाइना वहां कह रहा है मैं इन्वेस्टमेंट कर दूंगा, लेकिन मेरे लिए ये करना। अब वो क्या सीक्रेट डील है वो तो मैं यहाँ नहीं बोल सकता, और मेरे को पता है, आई न्यू इट। राइट। नो, आई टोटली अंडरस्टैंड। देखिए डॉक्टर साहब, जो आप भी पूछ रहे हैं, जो डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं, मैं दोनों बातों को मिलाता हूँ। कंट्रोल न्यूक्लियर ब्लास्ट टेक्नोलॉजी की वजह से उसने बहुतों को छोड़ा और उनको चुना। ग्वादर पोर्ट की प्रॉब्लम भी, और उसकी चाबार पोर्ट की प्रॉब्लम भी यहाँ से शुरू हुई है। ग्वादर पोर्ट वाज ऑन द टारगेट ऑफ ईरान। चाबार पोर्ट इंडिया के हाथ से निकलते निकलते फिर से आया है। आप समझिए तो सही। ठीक कह रहे हैं। लेकिन अगर ईरान न्यूक्लियर ब्लास्ट टेक्नोलॉजी से हटकर न्यूक्लियर का कोई मतलब ही नहीं है, किसी को कोई मार, उसका फायदा भी नहीं है कोई। तो इस चीज को समझ लेगा तो आपको पता रिचेस्ट कंट्री होगा। सऊदी से डबल इकोनॉमी है उनकी, वहाँ ठंडा भी है 17 डिग्री सेल्सियस है सर, बर्फ भी पड़ी है कुछ दिनों पहले। सऊदी में कभी बर्फ नहीं पड़ती, तेहरान में बर्फ पड़ती है। मैं भी था, बिना जैकेट के नहीं जी, पहली कंट्री थी मुस्लिम कंट्री जहाँ बिना जैकेट के नहीं निकल सकते। जहाँ प्राइम मिनिस्टर मोदी रहे, हम वहाँ 7 बार रहे। मोदी जी तो बाद में गए, जब वो बना था होटल तब हम गए। इसलिए हम कह रहे हैं वो कंट्री, वहाँ लोग पैट्रियट है, वहाँ लोग वैसे वाले नहीं है, सिविलाइज्ड है। आपको समझना चाहिए, ईरान को भी समझना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। रिलेशन है जिसको पोस्ट, आप लोग भी वहाँ शो कीजिए जिससे उनको समझा पाए। इसका कोई वैल्यू ही नहीं है, इसमें जो इन्वेस्टमेंट $500-700 लगेगा तो आप क्या दिखोगे पता है? नॉर्थ कोरिया, जिसने एक ड्रामा बना लिया है। आप नॉर्थ कोरिया मत दिखो, बहुत ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन हो, 3000 ईयर ओल्ड। राइट। आप बोलो आपको जरूरत क्या है? इंडिया के साथ दोस्ती की है, कौन मारेगा आपको?
राइट राइट। इंडिया बगल में न्यूक्लियर पावर है, आपको वैसे भी ट्रीटी कर लेनी चाहिए बगल में, और इंडिया को बीच में आना चाहिए था कि दोस्ती करानी चाहिए। जो ये डिप्लोमेसी है कि दोस्त को दोस्त नहीं बनाना है, ये खराब है। प्राइम मिनिस्टर मोदी को आगे आना चाहिए। मैं नहीं जानता प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी should take Iranian government in hand and make a friendship, क्योंकि ये पीस लाएगा, ये रिसेशन खत्म करेगा। नहीं तो अभी समझ में आएगा फरवरी मार्च में, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। फरवरी मार्च में पर और बुलाइएगा, मैं पूछूंगा जो मैंने आज कहा है वो सही था या नहीं था। नहीं, आपको ज़रूर बुलाएंगे फरवरी मार्च में भी, ये आपकी बातें सुनेंगे। अजय भाई, अब हम कंक्लूड करते हुए, मैं जो डॉक्टर साहब ने बात की इस पर मैं ज़रूर कमेंट्री करूंगा कि ईरान के बारे में जो कह रहे हैं आप, मैं समझता हूं। मैं ख़ुद होटल लाली तेहरान में कई बार ठहरा हूं, जो तेहरान में आर्ट गैलरी के साथ, और वो जो होटल लाली, जो अब उसका नाम पहले होटल इंटरकॉन्टिनेंटल होता हुआ करता था, मैं ठहरा हूँ, मुझे अंदाज़ा है उनकी सिविलाइजेशन का। ये सब जो है ना, अमेरिकन्स जो प्रेशर है, अमेरिकन्स को भी एनिमी चाहिए होते हैं वो अपने असले की फैक्ट्रियों के लिए, वो वी डू अंडरस्टैंड। ये सारे का सारा अब वो एक्शन और रिएक्शन बिल्ट हो रहा है। ईरान में भी मैं ये कहता हूँ कि ईरान से ज़्यादा डेंजरस नेशंस हैं इस दुनिया में, लेकिन चूँकि ईरान की ये ज़रूर रजीम की स्टुपिडिटी है कि वो ऐसे ही मर्ग बर अमेरिका हर नमाज पे कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ज़रूर बात कीजिए। वो जो आप टेरेस देखते हैं टैंक घुमाते हुए, क्या वो ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल है? नहीं है। तो आपने जब शिया और सुन्नी वाला गेम खेला, आपने डिवाइड किया। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जब आपने सद्दाम को जो भी किया है, मेरा डिसीजन नहीं है, मेरे को मेरा काम, what Saddam did and what Saddam doesn't did, राइट। बट आपने इसके 17,000 फौजियों को निकाल दिया। राइट। आपको लगता है कि कोई टैंक रोड पर राउंड घुमा सकता है? राइट। 8 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होती है उस टैंक को चलाने के लिए। स्टिंगर मिसाइल क्या है, मामूली सा रोड छाप गुंडा चला सकता है? नो। वो 17,000 लोग जिनके पास रोटी नहीं थी ना, उन लोगों ने पेट की आग बुझाने के लिए चलाई है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आप ही जर्नलिस्ट हैं। मैं आपसे एग्री करता हूँ। जब हम जर्नलिज्म में बातें करते हैं तो बहुत सुपरफिशियल बातें कर रहे होते हैं, हम बहुत सारी अंदर की बातें कर ही नहीं सकते। क्या है कि आप लोगों ने तो वो थर्मामीटर लगा रखा है, नीचे से निकाल लूंगा। वो घर मिसाइल चलाने के लिए बहुत कैपेसिटी चाहिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका। 30% जो लोग आर्मी से निकाल दी गए, उन लोगों ने आईसीस फॉर्म की है, वरना कोई नया लड़का टैंक को यू रोड पर घुमा दे, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है। आपको दे दूं तो आज तो अनलॉक भी नहीं होगा वो। आई नो, नहीं, हम तो उसको टच भी नहीं कर सकते। वो आप दोनों को बस में नहीं है, इतनी नॉलेज है। डॉक्टर साहब लिखते हैं, आप इतनी दुनिया देख चुके हो, फिर भी आप दोनों स्टिंगर मिसाइल टैंक नहीं चला सकते। नहीं, देखिए अजय भाई, वो पंजाबी का एक एक्सप्रेशन है, जिसका काम उसी को साजे। जी, गुर्बत को आप टेररिज्म से मत जोड़िए। हर बार टेररिज्म को गुर्बत से मत। गुर्बत एक ऐसी चीज है जिसका जवाब 2 हाथ और जगन्नाथ हमारे यहाँ कहते हैं। हम हिंदू हैं, 2 हाथ और जगन्नाथ साथ हो, फिर तो देखिए घर में क्या खुशखबरी आती है। ठीक है, यही चीज लोग के साथ छीन ली गई है। अल्लाह का साथ और दोनों हाथ। बिल्कुल ठीक लिया आपने, इसलिए आप मत बोलिए कि वहां जो हो रहा है वो टेररिस्ट है। हर बार टेररिस्ट को इजी एक्सप्लेन मत कीजिए सर। नहीं, वेरी वास्ट वर्ड जो यूएन ने आज तक जवाब नहीं दिया, व्हाट इज गुड टेररिज्म एंड बैड टेररिज्म। ठीक है, सो हम लोग ना ही करें तो अच्छा है। सादा सर को गुस्सा मेरे पे बहुत आता है, मैं जब ऐसे बहुत क्लियर था टेररिज्म इज टेररिज्म। मगर मैं आपको बताता हूँ, हर कोई टेररिस्ट नहीं है मुस्लिम कंट्री। नहीं, 99.9% नहीं है। ये तो बात मैं ऊपर कहता हूँ। जो बेचारे बने हैं वो सर्कमस्टांसेस हैं, और उसमें बहुत सारी जो वजूहात हैं वो वेस्टर्न कंट्रीज की खुद हैं। ये मैं खुल के कहता हूँ। वो ठीक है सर, लेकिन अपनी भी एक सोच। फौज को ही छोड़ दिया जी, या गवर्नमेंट आपकी रात में आपने 17,000 लोगों को निकाल दिया, वो कहाँ जाएंगे? राइट। कभी रिहैबिलिटेशन का
नहीं सोचा, अमेरिका ने सोचा नहीं No, सोचा, never. आपने क्रिएट किया प्रॉब्लम। अमेरिका को भी सोचना चाहता। ये इनमें से 4 लड़के अगर अमेरिका पहुंच जाएंगे तो 9/11 करेंगे ना, राइट राइट। और हमारे तो उनके नुकसान आएगा। अजय 9/11 का भाई, ये वो बातें हैं जो हमें आपके साथ ऑफ द कैमरा करनी चाहिए, और मैं आपके साथ अपने रशिया के एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा कि वहाँ पे रशिया में हमने क्या देखा। सरदार सर हमारे बाबू जैसे हैं। जी हाँ, तो एक बिल्कुल, चीज बड़े 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 भाई हैं हमारे। चलिए, और ना मैं सेकंड सो नाइस ऑफ यू। सबकी रेस्पेक्ट करता हूँ, और ऐसा कोई नहीं है जो टेरेस बिना बनाए टेरेस बनाओ। ठीक। सिर्फ कुछ लोग हमने प्लान किया है, ठीक तो है, हम भुगत रही है। बिल्कुल ठीक। वो अब हम सब भुगत रहे हैं सैडली। ठीक, हमने क्यों किया है? आप बताइए, 17,000 आर्मी को आपने छोड़ दिया रोड पर, क्या कहाँ करेंगे? जाइए? उसे तो गोली चलाना ही आता है, उनको और तो ISIS कुछ आता फॉर्म- नहीं है। बिल्कुल ठीक बात। ISIS इसलिए फॉर्म करेगी, ISIS इसलिए फॉर्म करेगी कि उन 17,000 को आपने रोड, उसको रेगुलर आर्मी में लिया। हाँ। ये मुझे CIA बताएगी या इंडियन RAW? नो नो, दोनों ही बेवकूफ बातें ना करें। मुझे पता है वो 17,000, क्योंकि एक टाइम अगर डॉक्टर सादा कैपेबल नहीं है, ताहिर गोरा कैपेबल नहीं है, ठीक कहते हैं। इतने पढ़े लिखे आदमी कैपेबल नहीं है, स्टिंगर मिसाइल, वो रोड छाप टैंक को राउंड राउंड घुमाते हैं। मैंने टीवी में बहुत बार देखा है। ठीक बात है, ठीक ठीक कहते हैं आप, ठीक कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भाई। ऐसी बातें हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिसको हम कहते हैं कैंडिड टॉक आज हमने किया आपके साथ। भगवान आपको अपनी रक्षा में रखे, आप इसी तरह दुनिया में अच्छा सोचते रहें। हम आपसे राब्ते में रहेंगे, आपके विचार लेते रहेंगे। आपके विचार हमारे लिए सिर्फ नहीं, हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक थर्ड आई है जो आप जैसे दोस्त हमें दे सकते हैं। ब्रेन बस्ट में डॉक्टर अजय कुमार, CEO फॉक्स पेट्रोलियम लिमिटेड के हमारे साथ थे। उनके विचार आपने सुने। कोई भी कमेंट्स आपने देने हो प्लीज़ ज़रूर कमेंट्स दीजिए। और मैं अजय जी को बता दूं, अजय जी याद रखिए, आपने कहा आपने कनाडा में आना है, और आपने कहा कि यस आप हमारे बहुत बड़े सपोर्टर बनेंगे। हमारे का मतलब हमारा जो टैग TV का परिवार है, ये मैं आपको भूलने नहीं दूंगा। ये आपको मैं बता दूंगा, आज सबके सामने कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत मेहनत के बाद आप हमें मिले हैं। बहुत बार प्रोग्राम पहले भी कैंसिल हुए आपके साथ, लेकिन एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। हैव ए वंडरफुल वंडरफुल नाइट इन इंडिया। Thank you. And enjoy the sound sleep today. Thank you very much. And Happy New Year in advance, and Happy New Year to all our viewers. ये आपको भी सर, ताहिर गोरा सर, सादा सर, डॉक्टर सादा सर, चरण स्पर्श। So nice of you. God bless you. जाते जाते एक बार फिर हमारे जितने दर्शक हैं Thank you. उन सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपने प्रोग्राम क्रिसमस का भी देखा, अब भी देखा। आई थिंक फ्रॉम नेक्स्ट फ्राइडे इट विल बी ए रेगुलर प्रोग्राम ऑन फ्राइडे। आई डोंट नो, हमारे CEO साहब हमें बताएंगे, ताहिर साहब, कि वेदर इट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट फ्राइडे। Friday जी। फ्राइडे बाकायदा रेगुलर ब्रेन बस्ट आपके साथ हुआ करेगा। विश यू ऑल द बेस्ट, और इजाज़त लें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए वंडरफुल Wonderful. Thank you. 2021। Happy New Year.